Hello student, welcome back. So in the last class we had discussed about series and parallel combination of resistors, and towards the end I think I had given you one questions based on color of the bear, and I wish you all have gone through that question and enjoyed that particular question. Now in today's lecture, first of all I am going to discuss all the 4 questions that were given as homework to you, and I'm assuming that you must have tried those questions, and if at all you are not very much sure about how do we exactly solve those questions, then I'm giving you the solutions here. Okay, now the first question had 3 resistors connected in the form of a triangle. So from homework, first question, a triangle was ABC and there were 3 resistors connected. With between A and B you had resistance of 60 ohm, here you had 10 ohm, and this was 20 ohm. So there were 3 resistors, 10 ohm, 20 ohm and 60 ohm. Now the question was to find effective resistance between A and B. So if you have to find effective resistance between A and B, as I had told you in the last class, your current will enter at A and will exit at B. अगर आपको A और B के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि you have to make sure that your current enters at A and exit at B. Okay, so this current is suppose I. So when this current I reaches at junction A, in case you are seeing this lecture for the first time, I request you to go through previous 2 lectures, right? So this current is I. At junction A, the current will split into 2 parts. Consider this to be I2 and this as I1. Now think carefully. This current I2 will continue to travel through 10 ohm. At C, it will turn and enters into what? 20 ohm. मतलब 10 और 20 में से सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होने वाला है. सो ये एक एरर आप लोगों ने शायद किया हो सकता है अगर इस छोटे से पॉइंट को ध्यान नहीं दिया होगा तो. If you want to find effective resistance between A and B, make sure that your current enters at A and exit at B. A से enter होकर B से निकलना चाहिए. So at junction A, the current will split into 2 parts, I1 and I2. I2 current 10 और 20 में से फ्लो कर रहा है. इसका मतलब ये 10 ओम और 20 ओम कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में. बिकॉज दे आर कैरिंग सेम वैल्यू ऑफ करंट. करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है. सो उनका जो इफेक्टिव आएगा वो हो जाएगा 10 + 20. मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि इतना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. ओके, अब ये सर्किट का नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा? सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, टेल मी. 10 और 20 की जगह पर एक सिंगल वैल्यू ऑफ 30 ओम आप ड्रॉ करोगे. तो आपका पॉइंट ए है, आपका पॉइंट बी है. ए और बी के बीच में यू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम. करंट ए से एंटर कर रहा है और बी से एग्जिट करने वाला है. अब 10 और 20 मिलके 30 जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उसका एक एंड ए पर होगा और एक एंड कहाँ कनेक्टेड होगा? बी पर. सो बीच में सी भी तो था, वो चला गया. जैसे ही 2 रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, दिस पॉइंट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस टू अस. सो 10 और 20 का इफेक्टिव 30 विल बी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी. सो ए और बी के बीच में यू हैव 30 ओम. सोचो बच्चों अब कैसे करेंगे? दिस पॉइंट इज ए. अगर आप लास्ट क्लास में थे, सिर्फ एक वायर है तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी. अब बताओ 30 ओम किसके बीच में कनेक्टेड है? ए एंड बी. 60 किसके बीच में? ए एंड बी. यानी ओवरऑल दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल. वेरी गुड. सो इसका इफेक्टिव दीज टू आर इन पैरेलल. So for parallel, what was the formula? 1 upon R parallel is 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R parallel मुझे नहीं पता. 1 upon R1 30 plus 1 upon R2 60. अब इनको ऐड करने के लिए एक तरीका नया आज सीखते. चलो, पिछले 2 लेक्चर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वाला मेथड कर रहा था. आज हम क्या करते हैं बच्चों पता है? डिनोमिनेटर को सेम बनाने का मेथड सीखते हैं. सो अगर ये 60 है तो मैं 30 को 60 कैसे बना सकता हूँ? 30 इंटू 2 और ऊपर भी 2. सर क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया. सो ये हो जाएगा 2/60 प्लस 1/60. दैट गिव्स यू 3/60. क्या ये आरपी है? नो सर, इट इज 1 अपॉन आरपी. तो आरपी की वैल्यू क्या होगी? इसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे. सो आरपी वुड बी इक्वल टू 60/3 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 20 ओम्स. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 20 ओम. बहुत सारे बच्चों को 90 आया होगा. सो क्या गड़बड़ थी? ये तीनों सीरीज में नहीं थे, ये दोनों सीरीज में थे और उसके बाद ही इनके साथ पैरेलल में. ठीक है,
स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए. फाइन. नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन था बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन वो क्या था? तो इन सेकेंड क्वेश्चन, homework question number 2. In question number 2 it was given 6, 3, 1 and 4. So you had 6 ohm resistance, 4 ohm resistance, 3 ohm resistance and 1 ohm resistance. और आई एम वेरी श्योर कि ये वाला आंसर बहुत सारे बच्चों का राइट आया होगा, क्योंकि इसमें आप सिली मिस्टेक करने के चांसेस कम थे. चलो मेथड बनते हैं, सीखते हैं. करंट एंटर कहाँ से कर रहा है? ए से. सो करंट ए से एंटर करेगा, एग्जिट करेगा बी से. सो ये करंट अगर आई है, सो यहाँ पर आने के बाद करंट दो पार्ट में स्प्लिट होगा. यहाँ चला गया I1 तो आगे चला गया I2. बोलिए अब मुझे बताओ, ये I2 क्या 1 ओम में से भी फ्लो करेगा? यस सर. सो यहाँ से भी करंट आएगा I2, यहाँ पर भी करंट आ जाएगा I2. फिर से ये करंट कितना आएगा यहाँ पर? I1. सो अगेन दीज टू करंट विल कंबाइन, इधर से I1 इधर से I2 और ये वापस से I हो जाएगा. कैसे सर? I1 प्लस I2 होना चाहिए, बराबर ना. वो I अगर दो में स्प्लिट हुआ तो दोनों कंबाइन होकर वापस क्या देंगे आपको? I. अब मुझे बताओ ये 3 और 1 कैसे कनेक्टेड है? ये 3 और 1 कनेक्टेड है सीरीज में. क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक और काम कर लेते हैं अपने इजी के लिए. ये B है, सो ये पॉइंट कौन होगा? B. क्यों सर? सिर्फ एक वायर है. ये B तो ये पॉइंट भी कौन होगा? B. क्यों सर? सिर्फ एक वायर है. ठीक है ना बच्चों. अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. 3+1 सीरीज में कितना आंसर देगा आपको? ये 4 ओम. सो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखाई देगा सर्किट? मुझे बताओ. 6 ओम अभी भी वैसे के वैसे है, 4 ओम अभी भी वैसे के वैसे है, और ये 3+1 4 ओम हो गया. आप जानते हो ये पॉइंट था B, ये भी था B, ये भी था B, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये है 6 ओम, इसका नाम है A. अब जैसे सर आपने यहाँ पर इनका नाम B B B रखा, इसका नाम A है. मुझे बता, अगर इसका नाम A है तो क्या ये A हो सकता है? क्यों? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, इसलिए A नहीं हो सकता है. अच्छा, ये B है तो ये रजिस्टर है तो ये B हो सकता है. A नहीं, B नहीं, तो नाम हो गया C. इसका मतलब बच्चों ये पॉइंट भी C है. अब बताइए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वायर तो ये भी C है. कोई तो बोलो, तो ये B और C कैसे कनेक्टेड है? सॉरी, ये 4 ओम किसके बीच में कनेक्टेड है? B और C. और ये 4 ओम भी किसके बीच में कनेक्टेड है? B और C. यानी दोनों 4 ओम कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल. सो दीस टू आर इन पैरेलल. ये दोनों पैरेलल में है. दोनों कैसे है? पैरेलल. तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना. कैसे करेंगे? चलिए, तो क्या लिखेंगे? मैं कैलकुलेशन यहां बता देता हूं. 1/R पैरेलल विल बी 1/4 प्लस 1/4, दैट गिव्स यू 2/4. तो R पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी 4/2 एंड 4/2 इज गोइंग टू गिव यू 2 ओम्स. इसके शॉर्टकट्स भी बहुत सारे हैं, बट फिलहाल हम शॉर्टकट्स के लिए नहीं पढ़ रहे. याद है मैंने कहा था आपसे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है. सो ये 4 और 4 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, और उसका इफेक्टिव आ जाएगा 2 ओम. ऑलराइट. सो अगर इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ करूं तो ये कैसे दिखेगा? मेरे पास A है, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, सो आई विल हैव 6 ओम का रेजिस्टेंस. फिर 4 और 4 का पैरेलल कितना हो गया? 2 ओम. और ये B 2 ओम कहाँ से लाया? तो यहाँ से लाया. अब मुझे बताओ, जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा था वो सेम यहाँ से भी जाएगा. सो डू यू एग्री? ये I जो था वो 6 और 2 दोनों में से फ्लो करेगा, बिकॉज दे आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज. जो भी करंट आएगा सेम फ्लो करने वाला है. तो दैट मीन्स ये दोनों अब सीरीज में हो गए. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज गोइंग टू बी 8 ओम. हैज एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? फिर से ये दोनों सीरीज, जो आएगा इफेक्टिव 4 वो 4 के साथ पैरेलल, और फिर जो इफेक्टिव 2 आया वो 6 के साथ सीरीज में है. ठीक है बच्चों. अच्छा सर, लास्ट टाइम तो आपने वो ABC वाला मेथड दिया था, A B और X वाला 3.1 लाइन में. आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसका सेम आप ऐसे भी कर सकते हो. कैसे सर बताइए? देख, पॉइंट A पॉइंट B जिनके बीच में फाइंड करना उनको एंड्स पर मार्क करोगे. बीच में है C. चलो भाई, ये 6 ओम किसके बीच में है? A एंड C. सो A और C के बीच में 6 ओम. ये 4 ओम किसके बीच में है? B और C.
और ये 4 ओम किसके बीच में, बी और सी। हो गया बच्चों, खुश, आया समझ में? ये लास्ट टाइम हमने ऐसे किया था। अब बताइए दोनों कैसे है, पैरेलल, जो आएगा 6 के साथ सीरीज में। सो ओवरऑल द आंसर इज गोइंग टू बी 8 ओम। फॉलोड एवरीवन? दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आई थिंक मैंने क्लास में ही पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आप कॉपी करना चाहते थे तो 10 सेकंड पीछे जाइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अभी जो थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट एग्जांपल ही अपना ये था, फर्स्ट या सेकंड, बट मैं ये ले चुका हूं क्वेश्चन से। वैल्यूज डिफरेंट है तो ये आपको आना ही चाहिए, और इसको मैं ओरली डिस्कस करने वाला हूं। सो 3 ओम, देन आई हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, I also have a resistance of 4 ohm, 5 ohm and 3 ohm. This is A, this is B. कैसे किया था? चलिए फिर से एक बार, यहाँ से करंट I आया, यहाँ से एग्जिट भी कितना होना चाहिए, I, जिसके बीच में फाइंड करना है करंट वहाँ से एंटर करेगा और दूसरे एंड से एग्जिट करेगा। यहाँ पहुँचने के बाद करंट स्प्लिट हुआ, यहाँ चला गया I1, ऊपर चला गया I2। सो ये I2 क्या 4 ओम में से भी फ्लो करेगा? यस सर। यानी ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 + 4 का कितना होगा? 6 ओम। ओके, अब इसका नाम अगर A है तो इसका नाम A हो सकता है? नो सर। B हो सकता है? नो सर। तो क्या मैं X लिख लूँ? यस सर। अगर ये X है तो क्या ये X हो सकता है? नो सर। तो उसको मैंने नाम रखा Y। ठीक है, सो नाउ 2 and 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इस सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो, तो इसका अगर इक्विवेलेंट, हाँ हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। A एंड B, A से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, फिर X और Y 2 पॉइंट है, सो एक X होगा और एक Y होगा। X और Y के अक्रॉस वी हैव रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। लेकिन सर X और Y के अक्रॉस एक ऊपर भी तो है 6 ओम। वेरी गुड, ये 6 ओम है। और फिर B और Y के अक्रॉस एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर? अब बताओ बच्चों, आप खुद बता सकते हो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। इसका एंड X और Y के अक्रॉस है, 6 ओम में भी अगर ये X तो ये X तो ये Y, X और Y, यानी ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए बच्चों? These two are in parallel. So अगर वो दोनों पैरेलल में है तो उनका इफेक्टिव क्या होगा? 1/r पैरेलल इज 1/6 + 1/3। चलो आज का वाला मेथड, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ये 6 है तो इसको भी 6 करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, फास्ट हो गया भाई। ये 3 है ना, 3 को 6 करने के लिए क्या करोगे? 3 2s are 6, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। 1/6 + 2/6 इज 3/6, यानी आर इफेक्टिव की वैल्यू रेसिप्रोकल लेंगे 6/3, 6/3 आपको देगा 2 ओम। आंसर नहीं है बच्चों, इन दोनों के बीच में 2 ओम है। सो अगर इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ करूं, सो आई विल हैव ए, देन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, करेक्ट, देन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, करेक्ट, देन अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। अब छोटा बच्चा भी बता सकता है बच्चों कि जो करंट यहाँ से आएगा वो तीनों में से सेम फ्लो करेगा, देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 + 5 7 + 3 गिव्स यू 10 ओम। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था 10। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों को ये खुद से भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, इसमें वापस से आपने गड़बड़ की होगी। कॉपी करना चाहते हो तो आप पॉज कर नोट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ए और बी एक स्क्वायर जैसा सर्किट है जिसमें 7 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, यानी स्क्वायर के चारों साइड्स के अलोंग रेजिस्टेंस है, और किसी एक डायगोनल के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस है। इस डायगोनल के अक्रॉस भी एक रेजिस्टेंस है। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। चलो, अगर अब तक 3 क्वेश्चन आपको समझे हैं और आप ये फोर्थ वाला सर हम फिर से ट्राई करना चाहते हैं,
आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और एक बार फिर से सोच सकते हैं। हमको इफेक्टिव फाइंड करना था बिटवीन ए एंड बी। सो तरीका क्या है, स्टार्टिंग से मैं कहता रहा हूँ, इफ यू वांट टू फाइंड अक्रॉस ए एंड बी, करंट शुड एंटर एट ए एंड एग्जिट एट बी। ओके, सो इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, करंट ए से एंटर करेगा, बी से एग्जिट करेगा। तो जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो I1 यहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, I3। जरा भी मत डरो बच्चों, क्या ये I3 3 से होते हुए 7 की तरफ भी जाएगा? यानी कि सबसे पहली बात कि 7 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, बिल्कुल सही। सो ये इजी है, पक्का। चलिए, तो पहले इनका हम इफेक्टिव निकाल सकते हैं। फिर से बताऊं, ए से करंट एंटर हुआ, I1 I2 I3, जो I3 वो 3 और 7 दोनों में से फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में। और मेरे बच्चों को इतना तो ओरली आता होगा कि 7 और 3 का एडिशन गिव्स यू 10। चलो, तो इस सर्किट को अगर मैं फिर से सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करूं, सो 7 + 3 इज गोइंग टू गिव यू 10। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया ए और बी के अक्रॉस 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर एक ऊपर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक डायगोनल के अलोंग 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये 7 + 3 मिलके भी कितना हुआ? 10। तो वो भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है। यानी अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा बच्चों, तो ऐसा कर्व क्यों ड्रॉ किया? कोई रूल नहीं बच्चों, आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये 10 ओम है। कहां से लाया 10? तो 7 + 3 10। अब क्या करें? अब वही अपना पुराना मेथड, इसका नाम अगर ए है तो इसका नाम ए नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है। ये बी, तो ये बी नहीं हो सकता। सोच, ए नहीं बी नहीं तो नाम क्या रखेंगे? एक्स। सो वापस से आपके पास कितने पॉइंट हो गए? 3, ए बी और एक्स। तो सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ए मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे, एक्स मार्क करेंगे। सर्किट को फिर से ड्रॉ करें। चलिए, ये 10 ओम किसके बीच में है? इट इज बिटवीन ए एंड एक्स। सो ए और एक्स के अक्रॉस 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये किसके अक्रॉस है? ए एंड एक्स। ओहो हो, यानी दोनों 10 ओम के रेजिस्टेंस ए और एक्स के अक्रॉस है। सेम पॉइंट्स के अगर अक्रॉस है तो कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल। अच्छा भाई, ये 5 किसके अक्रॉस है? बी और एक्स। तो यहां पर आ जाएगा 5 ओम। और ये 10 ओम किसके अक्रॉस है? ए और बी के अक्रॉस। ठीक है बच्चों, चले आगे। ए से एंटर करेगा और बी से एग्जिट करेगा। चलो, आप खुद ही बता दो मुझे क्या होने वाला है। यस सर, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। सो आंसर क्या आएगा? 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 5। एक ट्रिक बता दो बच्चों, जब रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो पैरेलल में उसका इफेक्टिव वैल्यू हाफ आता है। जैसे थोड़ी देर पहले भी था, देखो 4 और 4 तो आंसर 2 आया था, 10 और 10 है तो आंसर 5 आएगा। इफ देयर आर 2 इक्वल रेजिस्टेंस, चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, इफ देयर आर 2 इक्वल रेजिस्टेंस, पैरेलल वैल्यू आरपी विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2। सो 3 हुए तो r डिवाइडेड बाय 3, 4 हुए तो r डिवाइडेड बाय 4। बट राइट नाउ हम 2 के अक्रॉस ही आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आरपी विल बी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सो वैल्यू इज 10, तो r डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 5। अरे बच्चों, 1/RP की वैल्यू क्या होती है? 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10। जब रेसिप्रोकल लोगे तो कितना हो जाएगा? 10/2, 10/2 यानी कि 5। बेसिकली आप हाफ कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 कर रहे हो। सो अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस है तो डिवाइड बाय 2 करते हो, और 3 होते तो डिवाइड बाय 3 करते, 5 हो गए तो डिवाइड बाय 5 करोगे। ये शॉर्टकट है, पक्का ऐसे करेंगे। अगर वैल्यूज गजब है, मतलब अलग अलग है, तो फिर ऐसे ही करना बच्चों। बट इक्वल है तो आप ऐसे कर सकते हो, पक्का श्योर। चलिए ओरली बता, 2 रेजिस्टेंस है 14 और 14, 1414, तो आंसर हाँ 7। 20 के 2 है, आंसर 10। और टफ, हाँ 6 और 6 के 2 है तो 2, ऑफ कोर्स 2 डिवाइड बाय 2 ही कर, सॉरी 3, देखो मेरे से भी गलती होगी, 3 आएगा ना, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। समझा?
इजी है, तो इक्वल है तो यू डिवाइड बाय नंबर। चले आगे, ओके। सो चलिए इसमें हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते। सो ये 10 और 10 का इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5। तो ये सर्किट फिर आगे ड्रॉ कैसे करेंगे, चलो अगर मैं इस तरफ बताऊं तो। सो ये 10 और 10 का इफेक्टिव हो गया है 5 भाई। सो ए था, एक्स था, बी था, ए और एक्स के अक्रॉस इफेक्टिव कितना आ गया 10 और 10 का पैरेलल वैल्यू 5, और बी और एक्स के अक्रॉस कितना आएगा 5, और ए और बी के अक्रॉस वापस से 10। करंट ए से एंटर करेगा और करंट बी से एग्जिट करेगा। चलो भाई चलो भाई चलो भाई बताओ क्या होगा, क्या लगता है ये दोनों 5-5 कैसे है, नहीं पता चल रहा है। जो करंट यहाँ से आएगा सेम यहाँ से जाएगा, यानी ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो 5 और 5 का सीरीज में 5 + 5 गिव्स यू 10। एडिशन तो इजी है ना। सोच वो जो 10 आएगा और ये जो 10 है फिर कैसे हो जाएंगे पैरेलल, वापस से 10 और 10 इक्वल है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। नहीं समझ में आया? अच्छा, जिसको टफ लग रहा है भाई देखो इधर, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। इसको अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं छोटी सी जगह में, इसको फिर से ड्रॉ करूं। सो 5 and 5 गिव मी 10 ओम, और नीचे वापस से 10 ओम, इस तरीके से था ये। सो दिस पॉइंट वाज ए, दिस पॉइंट वाज बी। ये किसके बीच में है, ए और बी। ये किसके बीच में है, ए और बी। तो दोनों कैसे है पैरेलल, और पैरेलल में जब इक्वल होते हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हो, क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो आंसर आएगा 5। सो दीज वर सोल्यूशन ऑफ ऑल द 4 क्वेश्चंस। इफ यू वांट द आंसर्स आई विल गिव आंसर। फर्स्ट के लिए आंसर था 20 ओम, सेकेंड के लिए आंसर था 8 ओम, थर्ड के लिए आंसर था 10 ओम, और इसके लिए आंसर आपके सामने 5 ओम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट these were basically solutions to the questions that I had given you for homework. Thank you, students.